कथनी और करनी ધોરણ 7 ની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર કથની और કરनी જે કહે છે એ લોકો પાલન કરતા નથી. નિયમ બધા માટે સરખા હોય છે. નિયમ પાલન ન થાય તો આપણે જ્યારે રસ્તા ઉપર જતા હોય તો રસ્તા ઉપર આપણે કઈ બાજુ જોઈએ છીએ? ડાબી બાજુ જઈએ છીએ, જમણી બાજુ સામા જઈએ છીએ? નથી જતા. નિયમનું પાલન યોગ્ય રીતે થાય તો જીવનની અંદર સારું એવું આપણને લાગે. અને અહીંયા એક વાત કહે છે, માનવ जीवन एक अमूल्य मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्ति प्रदान की. બધા જ પ્રાણીઓને પ્રદાન કરી, શક્તિ પ્રદાન કરી છે. જો કૂતરો છે વફાદાર પ્રાણી છે અને બીજે એને સૂંઘવાની શક્તિ એટલી હોય છે કે ઘણું બધું એક સૂંઘીને એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે આ વસ્તુ શેની સુગંધ છે, અવાજ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય શું અવાજ આવ્યો છે. અને બીજા બધા પશુ પક્ષીઓને પણ એવો રીતે ભાસ બતાવવા માટે છે એને તરત એની બુદ્ધિ શક્તિ દરેક મનુષ્યને આપેલી હોય છે અને આ બુદ્ધિ શક્તિ મુજબ લોકોએ કાર્ય કરવાનું હોય છે. इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है. इसलिए वह संसार में सारी रीते जीवन પોતાનું गुजारण करे छे. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते. मगर क्या सभी लोग हर समय कुछ सही काम नहीं करते. नियम है, नियम बनाए हैं तो नियम तोड़ेंगे. ટ્રાફિક સિગ્નલ ની અંદર ટ્રાફિક વાળો જે છે ટ્રાફિક સિગ્નલ નિયમો પાળવા જોઈએ તો આપણને સલામતી લાગે. અને એ નિયમ આપણે પાળીએ નહીં તો આપણા માટે દુર્ઘટના રૂપ ગણાય અને આપણે તે નિયમનો ભંગ કર્યો ગણાય. તો એ ન થવું જોઈએ. બીજું, કઈ બાર મનુષ્ય કહેતા है कुछ और करता है कुछ और. જે લોકોએ બગીચાની અંદર સર્ચ નહીં કે યહાં ફૂલ તોડના મના હે, ત્યાં તમે ફૂલ જેને વાવ્યું એ જ ફૂલ તોડે તો એને નિયમનો ભંગ કર્યો કહેવાય ને. જે બસની અંદર કંડક્ટર બીડી પીવે છે અને કંડક્ટરને બસની ઉપર લખેલું છે કે કયા ધૂમ્રપાન કરના મના હે પણ તોય કંડક્ટર છે એ ધૂમ્રપાન કરે છે કે એને નિયમ નથી લાગુ પડતો. બીજા મુસાફરોને નિયમ લાગુ પડે છે. એ મુસાફરોને કહી શકે છે તો મુસાફર કંડક્ટરને કેમ નથી કહી શકતો? તો નિયમ વિરુદ્ધ કોઈ પણ કાર્ય કરવું જોઈએ નહીં. પ્રકૃતિ અને સંસાર એ નિયમમાં જ બનેલી હોય છે. સૂર્ય રાત્રે ઉગે છે નહીં, એના નિયમ પ્રમાણે ઉગે સવારમાં. ચંદ્ર સવારે ઉગે છે નહીં, તે આપણને ચાંદની આપે છે રાતના સમયે. પછી તમે જુઓ પ્રકૃતિ જે છે એ કેવી છે? એ પ્રકૃતિના નિયમો, પ્રકૃતિ રૂપ નિયમો જે છે એ નિયમો ઘડવામાં આવતા હોય છે અને એ ઘડીને આપણે એની અનુરૂપ થઈને રહેવાનું છે. આપણે એનું વિરુદ્ધ કાર્ય નથી કરવાનું અને એનું વિરુદ્ધ કાર્ય કરશું તો આપણે જ દુઃખી થઈશું. આપણા માટે જ છે બધું. જે સંસારમાં જે પ્રકૃતિ અને પ્રાણ છે એ આપણા માટે જ છે. તો આપણે એને વિરુદ્ધ નથી કરવાનું, એના વિરુદ્ધ નથી થવાનું. આપણે તેને અનુકૂળ થઈને રહેવાનું છે. તો જ જીવનની અંદર દરેક પ્રગતિ આપણે હાંસલ કરી શકીએ અને દરેક લોકો સાથે સન્માનથી અને સારી રીતે જીવી શકશું. બીજું, इस कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर दिखता मिलता है. इस प्रश्न निबंध में उजागर किया. ये क्या है? निबंध. कथनी और करनी निबंध. कथनी और करनी ये निबंध है. ईश्वर के ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया. આપણને બીજા પ્રાણીથી શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. ઈશ્વરે કુછ આપણને વાણી આપી છે બોલવા માટે, વિચારવા માટે, બોલવા માટે વાણી આપી છે. એ બધા બીજા મનુષ્ય, બીજા પ્રાણીઓ, પશુ પક્ષીઓ, જંતુઓ છે એ બધાથી શ્રેષ્ઠ છે મનુષ્ય. આપણને એ આપ્યું છે વાણી. કઈ ગુણો છે ઉસે સવારા है, કેટલાય ગુણોથી તેને સવાર્યો છે, કેટલાય ગુણોથી તે સવાર્યા. ઘણા બધા ગુણ એનામાં છે મનુષ્યમાં. इसका उसे अभिमान भी होता है. इसके अंदर अभिमान पर હું કંઈક છું, હું શ્રેષ્ઠ છું, મારાથી કંઈક થાય છે, હું કંઈક કરું છું, તેનો अभिमान એને હોય છે. परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है. પોતાની જાતને ગુણવાન સમજીને કે કરે પોતે એવું કામ કરે છે ત્યારે તેને ગલત, તે ખોટું માને છે, એવું માને છે. કથની और करनी में अंतर कि एक ऐसे उदाहरण रोज देखते हैं. हम रोज एक देखते हैं कथनी और करनी में उदाहरण. तो यहाँ एक छोटी सी कहानी है. बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी. बस्ती विस्तार ની અંદર સરકારે બનાવવાની
सरकारे बगीचो बनवा माटे जगह छोड़ी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे की लगाने की सोची। बरसात नो मौसम थी અને મોહલ્લાનો એક માણસ, સોસાયટીનો એક માણસ એમ થી કે બગીચામાં આપણે ફૂલો વાવીએ છીએ। बात तो अच्छी थी, बात बहुत अच्छी थी बात, पर वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोका, कहीं वो कहीं से पौधे लाए, कहीं से कतार એટલે પંક્તિઓ લાઈનમાં તેને જે વૃક્ષો પૌધા છે, જે ફૂલો છે તેને વાવ્યા। देखभाल કરી સાર સંભાળ તો રાખવી પડે ને, આપણે વાયુમાંથી સાર સંભાળ રાખવી પડે ને, એને પાણી જોઈએ, આપણને પાણી જોઈએ તો એને પણ પાણી જોઈએ ને, સાર संभाल રાખી। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बाद फूल खिलने लगा, कितना अच्छा खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा, सब लोग पार्क में आते जाते थे। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगते, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलवा लगे छे। फरी फूल सबको अच्छा लगता है, सुगंध भी अच्छी लगती है, उसकी फॉर्म भी अच्छी लगती है। तो पार्क में लोग आने जाने से उन्हें यहाँ लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ ना ले। હવે એને થઈ ગયું પાર્કમાં બધા આવતા જતા લોકો છે, હવે ફૂલમાં કચરો ન થાય, ફૂલ તોડવા ના લાગે। તો એને એમ થયું કે ઉन्हें एक तख्ती पर ऊपर लिखकर रख दिया कि फूल तोड़ना मना है। એને એક તખ્તી બનાવી, એક પાટિયું બનાવ્યું, એ પાટિયાની ઉપર લખ્યું તો ફૂલ તોડના મના है। આપણે જોઈએ છીએ फूल तोड़ना मना है, यहाँ पे है फूल तोड़ना मना है, तेने रखेलू तख्ती बनाई। आते जाते सभी लोग इन्हें पढ़ते हैं, फूल भी कोई तोड़ता नहीं। पर मजे की बात तो तब आई, तब आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। क्या हुआ? खुद ने पौधा लगाया, पौधे सारे लगाए और खुद ही लिखे तख्ती पर फूल तोड़ना मना है, और खुद सुबह जल्दी फूल तोड़ने आ गए। तो सभी लोगों ने उसे देखा, कुछ लोगों ने उसे देखा और फिर वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, वे अपनी शर्म मिटाने के लिए पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो सभी लोग पूजा के लिए फूल ले जा रहे थे ना, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, ऐसा कहाँ बोलो, ये क्या बात है, कहाँ की बात हुई है कि। फिर दूसरी एक बात है, बसों में लिखता होगा, आपने कई बार मुसाफरी तो की होगी, मुसाफरी की ना, बस में मुसाफरी तो की होगी ना, उसमें लिखा होता है धूम्रपान करना मना है, उसमें लिखा होता है ना, धूम्रपान करना मना होता है, निषेध है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगे। एक यात्री था, मुसाफर था, उसने बीड़ी जलाई, कितने गीत नहीं हो ले बीड़ी सिगरेट जलाई ते चढ़ गई। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, सिगरेट पीनी नहीं है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में आ जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने देखा तो देखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहा क्या हुआ। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में गया, वहां उसने बीड़ी जलाई और एक मुसाफिर था, उसने इशारा करके कहा और कंडक्टर से कहा भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तब इस पर कंडक्टर ने क्या उत्तर दिया, शीघ्र बोल उठा यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। मनुष्य तो सभी एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी है। ये तो आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ये तो आपके लिए है। सिगरेट पीना मना है। तो फिर दूसरी कहानी, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था कि दुकानदार बोला आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखे हैं स्थान पर खड़ा करके आइए। देखिए दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर दिया और कहने लगा दुकानदार ये यहाँ नहीं, सामने जो स्कूटर पड़े है ना, वहाँ वाहन पड़े वहां रख दीजिए। कि तब सज्जन बोला मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, ज्यादा समय तक रुकना नहीं है, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है,
मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी ही देर रुकना है, मैं सामान लेकर अभी चला जाऊंगा दुकान पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात है? ठीक बात है, बीच सड़क पर आप स्कूटर रखते हो, ये ठीक बात है? नहीं ठीक है, तो आप मत रखिए। तब सज्जन ने दुकानदार वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया, हल्का किया खड़ा। सज्जन ने स्कूटर को जहाँ स्कूटर दूसरे वाहन खड़े हुए थे वहां उस स्कूटर में रख दिया और फिर दुकान में अपने सामान लेने आ गया। फिर वापस आकर अपना सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दी। दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, देखिए હવે તે ખરીદવા લાગ્યો હતો અને તે તરત જ તે થોડાક વારમાં એક બીજો એક સ્કૂટર લઈને આવ્યો છોકરો, અને છોકરો રહ્યો એ દુકાનની સામે તેને રાખ્યો સ્કૂટર રાખ્યું અને સ્કૂટર રાખ્યું અને ત્યાં ઊભો રહી ગયો અને પછી તે પોતાની સ્કૂટરની ઊભો રહ્યો તો તે પોતે અંદર જતો રહ્યો। ત્યારે તે પેલા સજ્જને એમ કીધું કે આપને इससे मना नहीं किया? वो बोला, वो तो मेरा बेटा है। ये क्या बात है? ये उसकी बेटा है, बेटे के लिए सब कुछ है पर ग्राहक के लिए कुछ नहीं। वो बोला, वो तो मेरा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े ना तो आदर्श भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आदर्शों की सिर्फ बातें करते पर आदर्श को अपनाते नहीं है, आदर्श को मानते ही नहीं है। कुछ लोग कैसे होते हैं? एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र में बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाजा खटखड़ाया, उन्हें खिड़की से जाकर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था। जो पिछले 4 मास का किराया मांगने बार आता रहता था। કેટલાક એક દિવસ તેને એક સજ્જનના ઘરે બંને મિત્રો હતા, તે બેઠા અને તેના ઘરે ગયા। બંને મિત્રો વચ્ચે વાતચીત થઈ અને કેટલાક एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और उन्हें खिड़की से जाकर देखा तो बाहर एक मकान मालिक खड़ा था। और बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले में 4 मास का 4 महीना किराया 4 वर्ष भाड़ું તેને बाकी હતું અને 4 वर्ष भाड़ું જેને बाकी હતું ત્યારે उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बोला बाहर भेजा। ત્યારે તેને પોતાના છોકરાને કીધું, સમજાવીને કીધું બહાર મોકલો। કીધું जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं अपने मकान का किराया लेने आया हूँ। फिर मकान का बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, तुरंत ही जवाब दे दिया। पिताजी ने कहा कि वे घर पे नहीं है। बताइए, पिताजी ने कहा कि वे घर पे नहीं है। बोलिए, ये तो जोक हो गया ना एक प्रकार। पिताजी ने ऐसा कहा मैं घर पे नहीं है, ऐसा। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी हो गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह दिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात की, हमें कोई भी कार्य गलत ढंग से मत करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। एक उसके दादा ने पोते ने दादा को सब कुछ समझाया। देखिए, एक दिन की बात है, वे बिजली के बिल जमा कर रहे, जल की और बिजली के बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। साथ में उनका 8 वर्षનો છોકરો પણ હતો। એક દિવસ તે વીજળીનું બિલ અને પાણીનું બિલ ભરવા ગયા હતા। દાદા અને પુત્ર બંને અને 8 વર્ષનો પુત્ર પણ તેમની સાથે હતો। बिजली जमा करने वालों की लंबी कतार पंक्ति, लंबी लाइन, बिजली का बिल जमा करने के लिए लंबी कतार थी, बिल जमा करने के लिए। और दिक्कत वे कई उपाय सोचने लगे। उपाय विचारवा लगे, હવે ઘણું ગુસ્સો આવી, લાંબી લાઈન છે, આટલી લાઈન પર હું કેવી રીતે ઉભો રહું? હું ન ઉભો રહ્યો કે उन्होंने खड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान दिया।